Assalamu alaikum and good afternoon, everyone. This is Ehsan Chishti from AMP, Association of Muslim Professionals. Thank you for joining us today for the employability training program organized by AMP. I would now take you through the AMP PowerPoint presentation about the Employment Assistance Cell. Association of Muslim Professionals, or AMP, is a non-profit organization, and among many other activities, we endeavor to promote employment and knowledge in our society. So these are a few flagship projects of AMP, which are skill development lectures, SDLs, AMP job fairs, employability training programs, AMP job drives, and many others. Employment Assistance Cell is basically one of the flagship project of AMP. It's one of the project which AMP runs regularly, and we are basically following three E's, which is education, employment, and empowerment. Today, it is one of the core project of AMP. So, major EAC activities, employment assistance cell activities include, but are not limited to, job fairs, job drives, employability training programs in colleges, skill training company tie-ups for skill development courses, job fairs. Job fair is one of the flagship projects of AMP, and we have successfully organized 42 job fairs till date. Every job fair has participation of minimum 50 companies and 2000 plus candidates. AMP has organized job fairs in the past in collaboration with Thane Police, Aurangabad Police, West Bengal Minority Finance Development Corporation, Andhra Pradesh State Minorities Finance Corporation, and other reputed NGOs. These government organizations and NGOs collaborate with AMP as local partners and take care of the local ground promotions in the job fair arrangements. AMP invites corporates like TCS, Asian Paints, Reliance Group, Cafe Coffee Day, McDonald's, Team Lease, Tech Mahindra, and many other reputed corporates in our job fairs. These are a few snapshots of our past job fairs. Job drives. Job drives are similar to job fairs but are organized on a much smaller scale. In a job drive, we typically invite only 2 to 3 corporates who have specific openings. We conduct job drives every week throughout India in collaboration with other consultancies and NGOs through the help of our chapters. These are a few snapshots and images of our past job drives. Job drives are similar to job fairs but are organized on a much smaller scale compared to job fairs. In a job drive, we typically invite only up to 2 to 3 corporates who have specific openings. ETPs, employability training programs. So, employability training programs AMP conducts in most of the colleges all across India. Job seekers find the right job at the right place at the right time and to become the right fit in a present day modern organization. Our ETP trainers are seasoned professionals who have in depth understanding of employability training and committed to investing their valuable time, resources, and knowledge in grooming the candidates. We team up with colleges in different cities and conduct ATPs there on a regular basis. These are a few snapshots and images of a past ATP in one of the college. So, skill training company tie-ups. AMP has partnered with reputed skill training companies like Tata Trust, Whirlpool, Tech Mahindra Foundation, etc. These are a few images of our skill training programs. So, our achievements till now in the employment assistance domain, we have done 42 plus job fairs, 9 online job fairs, 270 plus job drives, from which 4 online job drives, 200 plus employability training programs, from which 12 online ETPs. So these online job fairs, job drives, and ETPs are done during this pandemic.
AMP has recently launched indiazakat.com and theindiamentors.com. So indiazakat.com is India's first zakat crowdfunding platform floated by the Association of Muslim Professionals with a view to bring the zakat seekers and zakat givers on a unified platform. Its objective is to undertake its operations purely with the intent of bringing socio-economic transformation in the lives of the people without seeking to generate any commercial surplus. So I would like to share news like indiazakat.com has generated funds of around 1 CR. This was since Ramadan till now. The indiamentors.com strives for the development of a vibrant and progressive student community in India. To achieve this, AMP tries to reach out to every needy student of India through the medium of education, career guidance, and employment assistance. The indiamentors.com envisions a fully educated and empowered student community where no one is left out of the wheels of progress and development due to lack of awareness and guidance. So this was all about Association of Muslim Professionals. To know more about our organization, you can visit our website www.ampindia.org. To introduce our speaker for today, Mr. Salman Zia. Mr. Salman Zia is an experienced instructor having 16 years of work experience and loves working with students and professional and motivating them. So he's competent in creating a learning environment that is interactive, relaxed, and enjoyable with a bundle of group activities. He has a strong acumen in training and teaching, passionately involved in content development and classroom training pertaining to spoken English, communication skills, personality development, motivational talks, and grooming, soft skills, team building, and leadership skills. He takes regular sessions on soft skills, communication skills, corporate professional, and BE and MBA students. He has taken training sessions for junior and middle level executives at Uninor Telecommunication, UP East and UP West, IOG Technical Support Gurgaon, and LIC India, pertaining to etiquette, business communication, client relation, process, product, and sales and soft skills. He has worked with many corporate and institutions as a freelance trainer on multi-dimensional training assignment through Hero, MindMind, and Indus, teaching communication skills and soft skills to professionals and students. Before I invite our speaker for today, I would now start our session with a small qirat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العلي العظيم. I would now request our speaker for today, Mr. Salman Zia, to please carry on with the session for today. Shukriya, Anab. A very good afternoon to all of you. And I was thinking that from where I should start my interaction with you all. So recently, like interestingly, just have a like I was just going through the chat messages and I got I read one message saying that how can I get a job? I had pursued my assistant qualification. So, dear friend, now here I need to start my interaction just to make you understand. Please make sure that whatever points I'm going to talk about, I request you all to please pen down those things. And whenever you have, at the end of the session, whenever whatever queries you have, we are going to discuss those queries in brief, right? So the very first thing is that which from where I would like to start with my session today is that degree is not a kind of any kind of employability skills, to be very honest with you. Degree is not going to be a kind of employability skills कि आपने डिग्री हासिल कर ली है आपको जॉब मिल जाएगी डिग्री के लिए I would say that there are many people those who are getting degree every year even like the field the domain I am from like MBA and like engineering students every year we have about like more than like 1 lakh and 2 lakh engineers and MBAs every year. But out of those 1 lakh and 2 lakh, hardly 12% and 14% are employable. तो ये जो टर्म है कि 12% एंड 14% आर एम्प्लॉयबल ये जो एम्प्लॉयबल है ये कैसे डिग्री सबके पास में आई डिग्री तो सबको मिल गई है तो इनमें से कैटेगराइज क्यों किया गया है ये जो 12% है या 15% है यही एम्प्लॉयबल है
क्योंकि यहाँ पे रोल शुरू होता है स्किल्स का. Degree is a gate pass which talks about that you are eligible to become a part of the organization. That doesn't guarantee you. I repeat my words once again, that degree is just a gate pass which says that okay, now you are eligible, but there is no guarantee. आपको जॉब मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है. आपकी जॉब गारंटी क्या है? वो आती है आपकी स्किल. शुरुआत हमेशा हमारी स्किल से ही होती है. स्किल्स को भी दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है. एक आती है हमारी हार्ड स्किल्स, दूसरी आती है हमारी सॉफ्ट स्किल्स. कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर एकेडमिक्स आपने कितनी नॉलेज गेन करी है, कितने सब्जेक्ट्स पे आपने एक्सपर्टीज गेन करी है. पहला पॉइंट ये आता है कि आपकी सब्जेक्ट नॉलेज कितनी है. सेकंड पॉइंट पे आता है कि अलोंग विद दैट वो जो नॉलेज आपने गेन करी है उसको एग्जीक्यूट करने के, उसको दिखाने के, या इन शॉर्ट ये बताएं कि उसको मार्केट में सेल करने के लिए आपने कौन कौन सी स्किल्स को इनकलकेट किया है, जो एचआर को, जो कंपनीज को, ऑर्गेनाइजेशंस को ये बताएंगी कि ये मेरी डिग्री है और ये मेरी नॉलेज है, इसको मैं बोल के बता रहा हूँ. आई एम कम्युनिकेटिंग इट आउट, राइट? So in a very brief, brief way, I would like to tell you the importance of communication skills, right? The importance of communication skills is what the areas which we have to focus on. The communication skills has been divided into three parts. ये तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है इसको. पहला हमारा पोर्शन आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कि ओवरऑल कम्युनिकेशन का 55% होल्ड करता है. सेकंड आता है पैरालिंग्विस्टिक, इट इज अबाउट 38%. एंड द लास्ट 7% दैट इज द पावर ऑफ वर्ड्स. तो इसका मतलब ये कि मैं जो बात कर रहा हूं मैं आपसे अभी, इन जो वर्ड्स की कीमत है ना वो खाली 7% है. अगर मेरे ये नॉन वर्बल, जो मेरे हाथ आपके सामने आ रहे हैं, फेस एक्सप्रेशन सामने आ रहे हैं, अगर ये एसोसिएट ना करें, या मेरी जो वॉइस में जो वॉइस मॉड्यूलेशन है, जो टोन है, जो क्लैरिटी है, जो रेट ऑफ स्पीच है, जो वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन है, अगर इन तमाम चीजों को एलिमिनेट कर दिया जाए तो वर्ड्स की कोई भी अहमियत नहीं होती. That is how you need to start building. Your very first thing is that your 55% communication, that is the non-verbal communication skill. When you are there for a campus placement, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, आप इसके पहले कोई आपसे कुछ भी सवाल करे, सबसे पहले आपकी जो द वे यू वॉक, जो आपका जो जेस्चर होता है, जो आपका पोस्चर होता है, द वे यू नॉक, द वे यू ग्रीट, एंड द वे यू गेट इनसाइड द कैबिन, यहाँ से आपकी पर्सनालिटी का इवैल्यूएशन शुरू हो जाता है. तो आपकी जो नॉन वर्बल, जो आपकी वॉक होती है, आपके शोल्डर कितने स्ट्रेट है, कितने डाउन है, फेस पे स्माइल है, नर्वसनेस है, कॉन्फिडेंस है, ये जो पूरा जो आपको जो ओपन बुक है, आपका जो फेस, आपका नॉन वर्बल ही पूरी ओपन बुक है. ये यहीं से इवैल्यूएशन का प्रोसेस आपका शुरू हो जाता है. और कहीं ना कहीं अगर आपसे मैं गलत नहीं हूँ अगर, तो इसी प्रोसेस के अंदर एक जजमेंट बन जाता है कि इस कैंडिडेट को आगे लेके जाना है या. तो ये जो शुरुआत, जो मोमेंट होते हैं, ये शुरुआत सिर्फ 1-1.5 मिनट होता है. यहाँ से हमारा बिहेवियर, हमारी एटिकेट्स, हमारा कॉन्फिडेंस सब मार्केट में आना स्टार्ट हो जाता है. दैट इज हाउ वी आर बीइंग ऑब्जर्व बाय द एचआर पीपल. अगर हम लकी हैं तो हमारे पास एक एचआर होगा. अगर हम थोड़े से भी ऐसे इंटरव्यू में जाते हैं जहाँ पे 2 से 3 एचआर बैठे हुए हैं, तो वह उन 3 के अलग अलग रोल्स होते हैं. एक हमसे सवाल जवाब कर रहा होता है, दूसरा हमारे नॉन वर्बल को पढ़ रहा होता है, तीसरा हमारे सवालों के जवाब में छुपी हुई जो हमारी जो सोच है, जो एटीट्यूड है, जो अप्रोच है, जो हमारे परसेप्शंस हैं, जो हमारे बोलते हैं ना कि इंटरप्रिटेशंस हैं, वो उन तमाम चीजों को रीड कर रहे होते हैं. तो देयर आर 3 पीपल दोज हु आर कंटिन्यूअसली ट्राइंग टू फाइंड आउट दैट व्हाट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी यू आर, राइट. And one more thing, that I was just going through a research. इस रिसर्च में कहा गया था कि there are 2 very important factor. किसी भी एम्प्लॉयबिलिटी की बात करते हैं उसके लिए हम, वो 2 एम्प्लॉयबिलिटी, वो फैक्टर कौन कौन से आए. एक आया था, एक फैक्टर है परफॉर्मेंस फैक्टर है, दूसरा लॉयल्टी फैक्टर है. तो परफॉर्मेंस फैक्टर का ग्राफ ये मान लीजिए एंड लॉयल्टी फैक्टर का ग्राफ ये मान लीजिए. अब कहा गया है कि परफॉर्मेंस फैक्टर किसी इंसान का बहुत आउटस्टैंडिंग है, एकदम टॉप के ऊपर जा रहा है, 90 अबव जा रहा है, राइट. और जो लॉयल्टी फैक्टर है, जो ट्रस्ट फैक्टर है उसका, वो बहुत कम है. तो it has been said that the HR people will not hire a candidate whose potential is very very high, but the loyalty factor and the trust factor is very very low. In place of, they would love to hire someone whose performance factor is average, but loyalty and trust factor is more. जिस एम्प्लॉय, उनको पता है कि जब कोई भी कैंडिडेट ऑर्गेनाइजेशन को आगे ज्वाइन करेगा,
उसको इनिशियल ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करेंगे, 6 मंथ को प्रोबेशन के ऊपर रहेगा। तो ऐसा कोई बहुत ज्यादा डिफरेंट टेक्नोलॉजी या स्टफ नहीं होगा जिसको वो उस 6 मंथ्स के प्रोबेशन के पीरियड में सीख ना पाए। अगर वो बंदा एवरेज परफॉर्मर है तो वो 6 मंथ्स के टेन्योर के अंदर वो एवरेज से बियॉन्ड एवरेज निकल के आ जाएगा, एंड विद इन फ्यू इयर्स डाउन द line he will be able to match up the performance level of somebody who is very very outstanding। लेकिन अगर किसी इंसान के कैरेक्टर के अंदर, उसके एटीट्यूड में लॉयल्टी नहीं है, ट्रस्ट फैक्टर नहीं है, तो प्रॉब्लम। अब आप सोचेंगे कि मैं आपको बता तो रहा हूँ कि लॉयल्टी फैक्टर, ट्रस्ट फैक्टर ये आता कहाँ से सामने, एचआर फाइंड कैसे करेगा? ये सब एचआर के सवालों में छुपा हुआ है। पूरा ये पूरा प्रोसेस एचआर के क्वेश्चन में छुपा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, whenever I go for kind of like campus placement thing, and I ask student, okay, who do you like the most in your college? Give me two things, give me a name three things which you do not like about your college। ऐसी कोई 3 बातें बताइए जो आपको कॉलेज के बारे में पसंद नहीं है। अब यहाँ के ऊपर होता क्या है कि जो सवाल होते हैं हमारे, आप खुद सोच के देखिएगा, बीइंग अ स्टूडेंट, आप गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट हैं। अगर मैंने सवाल किया गया कि नेम थ्री थिंग्स विच यू डू नॉट लाइक अबाउट योर कॉलेज, विच यू डू नॉट लाइक अबाउट योर इंस्टीट्यूशन, तो अगर आपके दिमाग में प्रैक्टिकल पैरामीटर्स के ऊपर कॉलेज को लेकर के कोई भी नेगेटिव थॉट है, कोई नेगेटिव चीजें हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, एचआर के दिमाग में पहला स्टेटमेंट यही आएगा कि जिस कैंडिडेट को इस कॉलेज ने 3 साल में, 5 साल में खड़ा किया, इस काबिल बनाया कि वो जाके मार्केट में परफॉर्म कर सके, उसके बेसिस के ऊपर अपनी लिविंग को अर्न कर सके, कमाई कर सके, एक ऐसा इंसान जो है यहाँ बैठ करके, आज बैठ के अपने कॉलेज की बुराई कर रहा है, कॉलेज के एनवायरमेंट की, उसके माहौल की और रिसोर्सेज की बुराई कर रहा है बैठ के। तो गाइस, दिस इज व्हाट दैट हाउ दे आर गोइंग टू इवैल्यूएट। तो जितने भी क्वेश्चंस आंसर्स होते हैं, मैं यहाँ पे आपसे वन बाय वन क्वेश्चन आंसर्स की बात बिल्कुल नहीं करने वाला। आई विल नॉट टॉक अबाउट दैट फर्स्ट क्वेश्चन, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, व्हाट इज योर वीकनेस। नो, मैं किसी भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्वेश्चन के आंसर्स पे आपसे बिल्कुल भी बात करने वाला नहीं हूँ। मैं आपसे बात करने वाला हूँ स्किल्स जिनकी मार्केट में रिक्वायरमेंट है। अगर आप उस स्किल्स पे काम करेंगे, उस पे फोकस रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, सॉरी, जितनी भी जो आप जॉब को फेस करेंगे, हर एक एफर्ट्स के बाद में आपका सिलेक्शन वाला प्रोसेस जो है आपका, वो इम्प्रूव होता जाएगा। इफ यू बिलीव इन दैट स्किल डेवलपमेंट प्रोसेस, अगर आप स्लोली एंड ग्रेजुअली एवरी नाउ एंड देन इफ यू इनकलकेट द रिक्वायर्ड स्किल्स, ऑटोमेटिकली यू आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। अच्छा, एक चीज और बताऊं मैं आपको, मैं इसके पहले कि मैं भाई से बोलूं कि स्क्रीन शेयर करने के लिए, आई वुड लाइक टू से वन थिंग टू यू। ये जो हमारा जो एटीट्यूड है, हमारा जो माइंडसेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे जो माइंडसेट है, जो भी हम अपने बारे में बात कर रहे होते हैं, जो भी हम सवाल जवाब कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल एक सिंपल स्टेटमेंट है। मैं चाहूंगा कि आप लोग अभी, अगर आपके हाथ में कोई पेन पेपर है, तो आप प्लीज उस पेन पेपर को ऊपर अभी इसी वक्त आप उस पेज को दो हिस्सों में डिवाइड करिए। एक में आप लिखिए आई कैन, आपकी जो राइट हैंड साइड पे लिखिए आई कैन, और आपके लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर लिखिए आई कांट। एक साइड लिखिए आई कैन और एक साइड लिखिए आई कांट, और वो तमाम बातें लिख डालिए जो आपको लगता है आप कर सकते हैं, और वो तमाम बातें लिख डालिए जो आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, राइट। तो ये लाइन ड्रॉ करिए, इसको लिखिएगा। इसके बाद में जब हम अपने सेशन को फिनिश करेंगे, कंक्लूड करेंगे, तब हम आपसे बात करेंगे जो एंटायर प्रोसेस बारे में, ये मैंने आपसे करवाया है तो क्यों करवाया। और ये जो माइंडसेट के बारे में बात कर रहा था मैं आपसे, माइंडसेट जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक फेमस पोएट की इंग्लिश की कुछ लाइंस हैं, आई वुड लाइक टू रिसाइट टू यू पीपल दैट व्हाट डज दैट मीन। इट सेज दैट think big and your deeds shall grow, think big and your deeds shall grow, think small and you will be left behind, think big and your deeds shall grow, think small and you will be left behind, think you can and you will, think you can and you will, it is all there in the state of mind। Life's battle always does not go to a faster or a stronger man, life's battle always does not go to a stronger or a faster man, sooner or later the one who wins is the one who thinks he can, sooner or later the one who wins is the one who thinks she can। ये माइंडसेट जो है हमारा, ये बताता है कि हम क्या क्या लेके बैठे यहाँ पे, हमारा एटीट्यूड। और before I switch to the document which I would like to discuss with you, I would like to recite a very small story। और ये जो स्टोरी है ना फ्रेंड्स, शायद आप लोग इस स्टोरी से अपने आप को अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। इस कहानी का जो नाम है ना, उसका नाम है काश मुझे पहले पता होता, है ना।
तो इस कहानी का नाम क्या है? इसका नाम है काश मुझे पहले पता होता। ये स्टोरी कारपेंटर की है, जो कि एक कहानी अमेरिका की है, यूएसए में, जहाँ पे आपको पता होगा कि घर बनते हैं वो वुडन के बनते हैं, टिम्बर के घर बनते हैं, लकड़ी के। ये कारपेंटर है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ में बहुत सालों से कनेक्टेड है, ऑलमोस्ट 30 ईयर्स हो गए इसको उनके साथ काम करते करते। वन फाइन डे ही रियलाइज दैट कि वो अब वो ओल्ड हो गया है, उससे इतना मेहनत वाला काम नहीं हो पाता, एंड ही finishes his last project and went to the CEO of the company and said कि सर ये चाबी है, मेरा लास्ट असाइनमेंट पूरा हो गया है, नाउ आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज फ्री मी फ्रॉम माय सर्विसेज, मेरे आप ड्यूज क्लियर कर दीजिए, और मुझे आप चाहता हूँ कि मुझको आप फ्री कर दें, मैं अपनी जॉब से रिजाइन करना चाहता हूँ। तो ये जो सीईओ ओनर होते हैं, ये थोड़ा सा सरप्राइज होते हैं और आके एक रिक्वेस्ट करते हैं, बोले कि भाई मैंने एक आखिरी असाइनमेंट ले लिया है अपने हाथ में, आपके लास्ट असाइनमेंट को एग्जीक्यूट कर दीजिए, उसके बाद में आपको मैं फ्री कर दूंगा, आई प्रॉमिस। ये जो एम्प्लॉय होते हैं कारपेंटर, ये काफी रिक्वेस्ट करते हैं कि सर प्लीज देखिए ना, अभी अभी हो गया, मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरी बॉडी में इतनी स्टेमिना नहीं है, इतना पावर नहीं है, ताकत नहीं है, रिक्वेस्ट करते हैं उनसे। लेकिन जो सीईओ होते हैं, जो ओनर होते हैं, वो भी लगातार रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि अब 30 साल की बॉन्डिंग होती है, तो ये मना नहीं कर पाते, और बहुत बेदबी के साथ में, ना चाहते हुए, ये उस प्रोसेस को, इस प्रोडक्ट को अपने हाथ में ले लेते हैं। साइट पे जाते हैं, साइट पे जाने के बाद में ये जो गुड्स रिक्वायरमेंट होती है, जो माल चाहिए होता है, उसको ऑर्डर करते हैं। ही वाज लीस्ट बॉदर अबाउट द क्वालिटी ऑफ द गुड्स, कि किस तरह की वुडन आ रही है, ही वाज नॉट दैट फोकस्ड अबाउट इट। जब घर का डिजाइन बनके तैयार होता है, नक्शा बनके तैयार होता है, अगेन ही वाज नॉट दैट फोकस्ड अबाउट, बिकॉज़ ही वांट टू रैप इट अप। अब दिल नहीं लग रहा उसका, सिर्फ फॉर्मेलिटी के नाम पे काम किया जा रहा है। थर्ड पोजीशन के ऊपर आपके पास में एक चीज आती है, इसको कहते हैं कि नो दैट द फिनिशिंग ऑफ द हाउस, कि घर की जो फिनिशिंग है, वो फिनिशिंग कैसी हुई है। तो मालूम पड़ता है कि ही वाज नॉट दैट फोकस अबाउट इट, और उनको बस घर बना के देना था। तो उन्होंने 4 महीने का काम 3 महीने में कंप्लीट किया। ऑफिस में गए, बॉस के हाथ में चाबी रखी, बोला कि बॉस ये रही आपकी लास्ट प्रोजेक्ट की चाबी, और आप मुझको अब फ्री कर दीजिए, नाउ आई वांट टू रिजाइन। तो बॉस वहां से उठते हैं, चेहरे पे स्माइल लेके आते हैं, और वो चाबी टेबल से उठा के उस एम्प्लॉय के हाथ में रखते हैं। वो कहते हैं ये रहा हमारी तरफ से आपका रिटायरमेंट गिफ्ट। जैसे ही वो चाबी उनके हाथ में आती है, इस बात का एहसास होता है कि ये जो लास्ट जो प्रोजेक्ट था वो उनको ही दिया जाने वाला था, तो उनके मुंह से अल्फाज निकल के आते हैं कि काश मुझे पहले पता होता, काश मुझे पहले पता होता, तो मैं बेस्ट पॉसिबल जो जो वुड्स हैं, जो क्वालिटी ऑफ जो वुडन है, उसको मैं बेस्ट बेस्ट क्वालिटी लेकर के आता। अगर मुझे पता होता कि घर मुझे मिलने वाला है, तो घर की डिजाइन में मैं मेरे 30 साल का पूरा एक्सपीरियंस डाल देता, और डिजाइन इतना ब्यूटीफुल बनता कि वो अपने आप में यूनिक होता। और काश मुझे पहले पता होता, तो मैंने अपने घर की फिनिशिंग अपने 30 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से बेस्ट फिनिशिंग थी मैंने। लेकिन फ्रेंड्स, वक्त हाथ से निकल चुका होता है, फाइनली अब वो उस पर कुछ भी नहीं कर सकते, वो घर है उनका, उनको वहीं पे रहना पड़ेगा उसके अंदर। सिमिलरली द सेम थिंग अप्लाइज ऑन अस टू। ये जो हमारा दिमाग है ना, यहाँ जो डेटा है, जो थॉट्स है, जो कंटेंट है, जो एटीट्यूड है, जो जो परसेप्शंस है, इंटरप्रिटेशंस है, सब यहाँ भरा हुआ है हमारे पास। तो हमारा मकान तैयार है, तैयार तैयार है या तैयारी के प्रोसेस में है, एंड नाउ वी आर गोइंग टू लिव इन दैट हाउस। अगर आपको लगता है कि आपके इस मकान के अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो रॉन्ग हैं, जिनको आप पसंद नहीं करते, प्लीज स्टार्ट एलिमिनेटिंग दैट, क्योंकि अल्टीमेटली आपको यहाँ पर रहना है। अब आप ये नहीं बोल सकते काश मुझे पहले पता होता। आपको पता है, आपको सब मालूम है। जब आप 10th में आए थे, आप 12th में आए थे, आप ग्रेजुएशन में आए थे, आपको सब पता था। आपको पहले ही मालूम था कि आज नहीं तो कल मुझको जॉब पे जाना ही पड़ेगा। आपको पहले पता था कि मुझको जॉब पे जाना है, तो इस पे काम करना पड़ेगा। आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने अब तक अपने स्टेज फियर पे काम करना स्टार्ट भी नहीं किया होगा, बल्कि स्टेज फियर से दूर भाग रहे होंगे। एक बार भी विलिंगली चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया होगा कि मैं स्टेज पे जाऊं, कुछ परफॉर्म करूं, कुछ करूं, एटलीस्ट दुनिया को दिखाने के लिए नहीं। मेरा खुद का जो डर है, जो चैलेंजेस है मेरे अंदर, जो फियर है मेरा अपना, जो मेरे अपने ग्रे एरियाज है, जो मेरी वीकनेस है, उस पे फाइट करूं, उससे बाहर निकल करके आऊं। बेटा यही तो स्किल डेवलपमेंट है। मैक्सिमम पीपल कैंपस में अपने इंटरव्यू को स्पॉइल कर देते हैं बिकॉज ऑफ नर्वसनेस, बिकॉज ऑफ हेजिटेशन, बिकॉज दे डोंट हैव that much of confidence, that much of confidence to go and execute themselves। उनको प्रॉब्लम यहीं पे हो रही होती है बिकॉज उन्होंने कभी उस चैलेंज को भी लाइफ में फेस ही नहीं किए होते। जो चैलेंज हम फेस ही नहीं करेंगे, तो हम कैसे जो लाइफ की जो एग्जैक्टली जो इंपॉर्टेंट जो फेजेस आएंगी हमारे, उसमें हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो जिस स्टोरी के साथ में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, काश मुझे पहले पता होता, ये कहानी अब खत्म हो गई है। अब आपको तब पता नहीं था, आपको अब मालूम। अब अगर मालूम है तो क्या करना है, वो आपको मैं बताऊंगा, मैं आपको राइट वो जो स्किल्स जो 2015 में थी और जो 2020 में आई हैं, उनमें से उनके ऑर्डर चेंज हो चुके हैं बहुत सारे।
और जो 15 के बाद, जो ये 20 के बाद जो 25 का फेज है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक कुछ रिक्वायरमेंट बदल चुकी हैं और चैलेंजेस बहुत सारे हो चुके हैं अभी, और राइट। सो भाई आई रिक्वेस्ट यू के प्लीज, अगर आप स्क्रीन शेयर करेंगे प्लीज। जी। तो ये जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, प्लीज पेन एंड पेपर के ऊपर ये स्किल्स को याद से इसको आप पेन डाउन करते हुए चलिएगा। दीज आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये मेरा अपना स्टेटमेंट नहीं है, ये जो ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम है ये उनका डेटा है, उनका कहना है, ये ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम है उनका कहना है कि ये वो 10 स्किल्स हैं जिनकी आने वाले वक्त में बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट है। जिनके पास ये स्किल्स होंगी उनके पास जॉब के चांसेस हमेशा बने रहेंगे। यू कैन रीड द स्टेटमेंट, सेज दैट the World Economic Forum shows which soft skills are required in the future. Change requirement required personal development. The world is constantly changing. This also changes the skills that are required to be successful. The World Economic Forum has defined 10 soft skills for 2020 that will be essential for the jobs for the future. तो यहाँ हम बात कर रहे हैं फ्यूचर जॉब्स को लेकर के, जिसके लिए आप लोग एस्पिरेंट है, राइट। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। नो लिस्ट डाउन दीज 10 स्किल्स। ये कौन कौन सी 10 स्किल्स हैं? पहला आ रहा है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। सेकेंड स्किल है दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग। थर्ड दैट इज क्रिएटिविटी। फोर्थ दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। फिफ्थ coordination with others. Sixth, emotional intelligence. Seventh, judgment and decision making. Eighth, service orientation. Ninth, negotiation skills. And 10, cognitive flexibility. ये वो स्किल्स हैं जो अगर आप में से कोई एमबीए स्टूडेंट है तो शायद उसने इनके बारे में बताया होगा। बहुत सारी तो नहीं होंगी, दो चार ही आई होंगी, बिकॉज इमोशनल इंटेलिजेंस इज अ पार्ट ऑफ द करिकुलम। अदरवाइज जितनी भी स्किल्स हैं यहाँ के ऊपर, ये किसी भी करिकुलम का पार्ट नहीं है। यू विल नॉट फाइंड यू नो दैट whether these skills have ever been there in that your curriculum। ये करिकुलम का पार्ट नहीं है, ये पार्ट है अवेयरनेस का, कि समाज में, सोसाइटी में, एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, उस चलती हुई चीज को ऑब्जर्व करना, उसके अंदर अपना फिटमेंट ढूंढना। और जहां पे हमको लगेगा कि यार यहाँ तो हम ग्रे एरियाज में, ये तो हमारा एरिया नहीं है, यहाँ तो हम काम नहीं कर पाएंगे, फौरन ही ऑन दैट मोमेंट डिसाइड करना। डिसाइड करने के फौरन बाद एक स्किल को पिक करना, उस पर काम करना स्टार्ट कर देना। फॉर एग्जाम्पल, हम में से कई लोग हैं जिनको आज भी स्पोकन इंग्लिश बहुत बड़ा चैलेंज है। ऐसा लगता है कि स्पोकन इंग्लिश नहीं हुआ कोई बहुत बड़ी मुसीबत है कि वो बोलना नहीं आ रही है। तो फ्रेंड, लेट मी टेल यू दिस, आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम हिंदी मीडियम। मेरा मेरा बेसिक स्कूलिंग उर्दू मीडियम से है, मेरा 10th भी हिंदी मीडियम से, मेरा 12th भी हिंदी मीडियम से है। और मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, और मेरे स्कूल गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, मैं भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ मैं भी, राइट। मेरी पूरी पढ़ाई गवर्नमेंट स्कूल से ही है। इफ आई कैन बी वेयर आई एम राइट नाउ, देन व्हाई कांट यू? तो यू हैव द लाइव एग्जांपल अवेलेबल, आपको कहीं और जाके ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं बैठा हूँ आपके सामने, मेरे पास में मेरे एक्सपीरियंसेस से पीछे। जब आप लाइफ में चैलेंजेस फेस करेंगे, 10 साल आप सीखेंगे अपनी गलतियों से, मिस्टेक से, तो ऑटोमेटिकली वन डे यू विल बिकम लाइक मी। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट स्टेट। कंपेयरिंग द लिस्ट ऑफ टॉप स्किल्स फ्रॉम 15 टू 20, आप देखिए, आप एग्जांपल दिया गया है कि 2015 और 20 के बीच में कुछ नई स्किल्स की ऐड भी हुई हैं, और कुछ पुरानी स्किल्स जो हैं उनके जो लेवल है, जो 1 पे थी वो शायद 3 और 4 पे आ गई है, जो 10th पे थी वो 2nd और 1st पे आ गई है। द ऑर्डर हैज बीन चेंज, सॉरी। This clearly shows how important personal development, social skills and empathy will be in future। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है एम्पैथी का। दो वर्ड होते हैं इंग्लिश में, एक वर्ड है सिंपैथी, एक वर्ड है एम्पैथी। दोनों का मतलब मैं आपको बताता हूँ। सिंपैथी का मतलब ये होता है किसी इंसान को पास बैठ के कंधे पे हाथ रख के उसको सिंपैथाइज करना, राइट। और एम्पैथी का मतलब ये होता है किसी इंसान के जो प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, एक्चुअली उस प्रॉब्लम के अंदर खुद जाना, पुट योर लेग्स इन द शूज ऑफ दैट कैरेक्टर, दैट पर्सन, फाइंड आउट द रियल प्रॉब्लम, रियल चैलेंजेस, एंड देन गिव अ सॉल्यूशन फॉर, राइट। तो सिंपैथी मतलब हमने ना ना प्रॉब्लम को समझा, ना जाना, कुछ भी नहीं किया हमने, और अपनी तरफ से ज्ञान देना स्टार्ट कर दिया। एम्पैथी का मतलब ये होता है कि रियल टाइम सिचुएशन को हमने फील किया, हम सामने वाले इंसान के जूते में पैर डाल के हमने देखा कि उसकी फाइनेंशियल चीजें, तमाम चीजों को हम इवेलुएट किया, तब समझ में आया कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। आज की तारीख में अगर मैं आपसे बात करूं, जो जो ग्रेटेस्ट लीडर्स की बात करूं मैं, उनमें एक नाम आता है जिनका नाम है एलन मस्क। एलन मस्क को सबसे ज्यादा ग्रेट लीडर कहा जाता है, और उनकी लीडरशिप क्वालिटी की सबसे इंपॉर्टेंट जो स्किल आती है वो आती है एम्पैथी।
एलन मस्क एक ऐसे एंटरप्रेन्योर है, मतलब ये कि ऐसे बिजनेसमैन है, ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं, जब उनकी आपने शायद नाम सुना होगा, स्पेसएक्स का नाम सुना होगा आपने। स्पेसएक्स जो नासा और इसरो को काम करना था, वो काम स्पेसएक्स ने किया है, बिकॉज एलन मस्क इज अ वेरी लाइक बिग विजनरी। उनका विजन बहुत डिफरेंट है। जहां लोग रॉकेट पे लगे हुए थे, उनका फोकस था कि मैं रीयूजेबल रॉकेट कैसे बनाऊं। फिर जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कार्स हैं, टेस्ला, वो उनके भी ओनर सीईओ हैं। दैट इज हाउ एलन मस्क, जब उनके वर्कशॉप पे, वर्क प्लेस पे कोई इंसिडेंट होता है, कोई हादसा होता है, he is least bother, he is the VC or the manager of the organization or the labor of the organization. He himself visit to that person in the hospital and takes good care of those people and ensure that everything can be taken care by the organization. That is how he went, he experienced and he empathized people, and because of which he is supposed to be a very of one of the, the biggest leader, and his leadership quality is empathy. Right? Guys, move to the next page now. So creativity is also an absolute core competence for future jobs. Is creativity. This applies not only to classic relative areas such as advertising or product design, but to all spheres of working life. अब ये जो क्रिएटिविटी है, इसमें एक वर्ड और ऐड करते हैं, इसको हम कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स क्रिएटिविटी। इसको हम क्रिएटिविटी भी कहते हैं, और एक इसकी जो हाई डिग्री है वो बोलते हैं आउट ऑफ द बॉक्स क्रिएटिविटी। आप जब भी किसी भी इवेंट में पार्ट कर रहे होते हैं ना, तो यू आर यूजिंग योर क्रिएटिव साइड। जब आप किसी इवेंट में, किसी कंपटीशन में जा रहे होते हैं, तो आप अपना क्रिएटिव साइड इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, जो हमने एक टर्म पढ़ी थी हमने, इसमें कहा जाता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है ना, उनको सॉल्व करने के लिए creativity and out of the box creativity are going to be one of the very important tool which can solve any problem, right? Any problem means any problem। अब आप खुद देख लीजिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कितनी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, कितनी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज व्हाट, इज ऑल अबाउट the use of your brain, and that too in a different direction, that is the creativity and out of the box creativity, that कि हम ह्यूमन जो लेबर है उसको मिनिमाइज कैसे करें और कैसे मशीन्स को बीच में लेके आ जाएं। दैट इज कंप्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स क्रिएटिविटी। अब भाई प्लीज मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। Okay, now just give me a moment. Okay, now human resource management, every company, okay, मैं आपको आउट ऑफ द बॉक्स क्रिएटिविटी के साथ में एग्जांपल देना चाहूंगा। मैं आपको वन स्मॉल एग्जांपल विद दैट क्रिएटिविटी एंड आउट ऑफ द बॉक्स क्रिएटिविटी, राइट? अगेन इन द फॉर्म ऑफ स्टोरीज। आई बिलीव दैट एवरीबडी लव टू लिसन टू स्टोरीज, तो मैं अपने सेशन में स्टोरीज का इस्तेमाल कुछ ज्यादा करता हूँ। तो फ्रेंड, ये स्टोरी है, ये स्टोरी एक लोन शार्क की स्टोरी है। ये जो लोन शार्क है, ये एक इसके मतलब कि इसके कर्जे में बहुत से लोग होते हैं जिन्होंने इससे बहुत सारा पैसा लोन पे लिया होता है, ब्याज पे लिया होता है पैसा। उसी में एक आदमी होता है जिसको टाइम निकल चुका होता है, वक्त जा चुका होता है, वो एंड ही वाज नॉट एबल टू पे द डेब्ट। अब क्योंकि वो डेब्ट क्लियर नहीं हुआ है, तो लोन शार्क इसको बनाता है प्रेशर के आपको पेमेंट करना पड़ेगा। सो व्हाट हैपेंस फाइनली, दैट लोन शार्क उनके सामने डील रखता है, बोलते हैं या तो आप मुझे मेरा पैसा वापस कर दीजिए, या फिर आपकी जो डॉटर है आप उससे मेरा निकाह करा दीजिए, उससे आप मेरी शादी करवा दीजिए उससे आपके। ये जो लोन शार्क होता है ना, ये बहुत अगली होता है, और इसकी एज भी अबाउट 55-60 ईयर्स की एज होती है। और जो 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 इंसान डेप्थ में है, उसकी डॉटर जो होती है ना, शी इज अनमैरिड एंड शी इज वेरी वेरी यंग। उसके पास ऑप्शंस नहीं होते, कोई भी ऑप्शन नहीं होते कि वो क्या करे, बिकॉज पैसा है नहीं कर चुकाने के लिए। और ये जो ऑप्शन आता है, समझ में आता है कि मे बी लाइक दिस इज द ओनली वे ही कैन गेट इट ऑफ फ्रॉम सर्टेन डेब्ट्स। सो लोन शार्क समझ में आता है कि ये बहुत कंफ्यूजिंग में है, बहुत प्रॉब्लम में है, तो वो एक ऑफर देता है उनको, बोले काम करते हैं, लेट्स हैव अ फेयर डील। हम एक फेयर डील पे काम करेंगे, और जो फेयर डील ये है कि मैं एक दिन बाद आपके घर पे आऊंगा, एक हाथ में मेरे एक बैग होगा, वो बैग ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, और मैं नीचे से जो फ्लोर पे पेबल्स पड़े हुए हैं उनमें से दो पेबल उठाऊंगा, एक ब्लैक कलर का, एक व्हाइट कलर का पेबल लूंगा, और दोनों पेबल्स को मैं एक थैले में डाल दूंगा। आपकी डॉटर आएगी, थैले में हाथ डालेगी, पेबल निकालेगी। अगर उसने ब्लैक कलर का पेबल निकाला, तो मैं पूरा के पूरा कर्जा माफ कर दूंगा, और आपकी डॉटर को मुझसे शादी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर उसने व्हाइट कलर का पेबल निकाला, तो मैं कर्जा तो माफ कर दूंगा, लेकिन आपकी डॉटर को मुझसे शादी करनी पड़ेगी। इस डील के साथ में लोन शार्क चला जाता है। नेक्स्ट डे वापस आता है हाथ में थैला लेकर के,
नीचे झुकता है, 2 पेबल्स नीचे से उठाता है और थैले में डालता है। तो वो पेबल्स को उठा के डाल रहा होता है, तो जो लड़की जिसकी बात हो रही है मैरिज को लेके, वो देख लेती है कि ये जो लोन शार्क है वो बहुत चालाकी के साथ में दोनों व्हाइट कलर के ही पेबल उठाता है और थैले में डालता है, ताकि वो लड़की कोई भी पेबल निकालेगी तो अल्टीमेटली व्हाइट ही निकल के आएगा। व्हाइट निकल के आएगा, इसका मतलब ये कि शादी तो करनी ही पड़ेगी हर हाल में। ये प्लेड इज गेम। अब ये जो लड़की होती है ना, इसके पास में 2 ऑप्शन होते हैं। या तो लोन शार्क की चालाकी को सामने ला करके वो नया हंगामा क्रिएट कर दे, नया सीन क्रिएट कर दे, और दूसरा ऑप्शन होता है कि वो चुपचाप अपने फादर के डेप्थ को चुकाने के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दे। ये 2 पॉसिबल ऑप्शंस हैं, मतलब ये 2 ऑप्शन जो है पॉसिबल ऑप्शंस हैं। इसमें अभी जो क्रिएटिव ऑप्शन नहीं कोई पर। बट व्हाट शी डू, शी अप्लाइड दैट क्रिएटिविटी एस्पेक्ट, दैट व्हाट शी डू दैट द क्रिएटिव साइड में वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ऑप्शन निकाल लेती है। वो जाते हैं लोन शार्क के पास, थैले में हाथ डालते हैं, पत्थर को निकालते हैं और थोड़ा सा फंबल करते हुए उस स्टोन को वो छोड़ देते हैं। वो स्टोन जो है, जो पेबल है, वो दोबारा फिर से नीचे पड़े हुए पेबल्स में मिक्स हो जाता है। शी अपोलोजाइज, ओ सॉरी, बाय मिस्टेक मुझसे ये पेबल गिर गया। वेल, नो प्रॉब्लम। आपने कहा था कि एक ब्लैक पेबल होगा, एक व्हाइट कलर का पेबल होगा, तो अगर आप देखिए आपके थैले में कौन सा है। अगर आपके थैले में से व्हाइट कलर का निकल के आता है, इसका मतलब ये कि जो पेबल मैंने निकाला था वो ब्लैक कलर का था। राइट? ब्लैक कलर का मतलब क्या हो गया कि मुझे आपसे शादी नहीं करना होगी और आप मेरे फादर का कर्जा भी माफ कर देंगे। दैट इज हाउ द लोन शार्क अंडरस्टूड दैट। उस लड़की ने देख लिया था कि मैंने दोनों पेबल व्हाइट कलर के लिए थे। अब वो फंस चुका था, उसके पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था सिवाय इसके कि वो थैले में हाथ डाल करके व्हाइट कलर का पेबल निकाले और ये कहे कि हाँ मेरे पास व्हाइट है, आपने ब्लैक निकाला था, इसकी वजह से मैं आपके फादर का कर्जा भी माफ करता हूँ और उसके साथ ही साथ मैं आपको मुझसे शादी भी नहीं करना पड़ेगी। दैट इज द पावर ऑफ क्रिएटिविटी एंड आउट ऑफ द बॉक्स क्रिएटिविटी। अब दूसरी बात देखिए, फिर से यहाँ पे एक बात और लेके आता हूँ मैं भी, कि हमने अभी कहा था कि हमारी स्किल्स में 2 स्किल्स जो अभी हम डिस्कस की नहीं, अभी करेंगे, दैट द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स। इस बारे में भी हम बात करेंगे। अगेन आई गिव यू वन मोर स्टोरी टू मेक यू अंडरस्टैंड, राइट? नाउ coming back to the fourth skill, that is human resource management. Every company depends on the skill of the people who work for it. Smart human resource management not only selects suitable characters but also maintains good corporate culture and takes into account the emotions of the employee. Emotional intelligence and social skills are therefore essential here as well. ये जो एचआर डिपार्टमेंट होता है ना, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, राइट, ये डिपार्टमेंट में जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है वो अलग होती है। कि इनका काम इंटरेक्शन होता है, इनके काम में नेगोशिएशन होती है, इनके लिए इंपॉर्टेंट चीज होती है पेशेंस। इनके पास में क्वेरीज का अंबार लगा होता है। दे हैव बंडल्स ऑफ क्वेरीज फ्रॉम द एम्प्लॉयज, फ्रॉम द न्यू एम्प्लॉयज, फ्रॉम ज्वाइनीज, सैलरी, पेपर वर्क, रिपोर्ट, इन नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर। तो इनका सब्जेक्ट नॉलेज में भी कमांड होना कि ये एचआरएम में क्या क्या पढ़ करके आए हैं, अलोंग विद दैट उन स्किल्स का इस्तेमाल करना, बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, राइट? तो दैट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में एक चीज और भी आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अभी मैं काम स्टार्ट करूँ, एक टीम बनाऊं, उस काम को एग्जीक्यूट करने के लिए मैं अपने लिए 15 लोगों को मैं अपॉइंट करूं, हायर करूं। अब लाजमी बात है, ये जो 15 लोग हैं, इनकी अपब्रिंगिंग अलग है, इनका एनवायरमेंट अलग है, इनकी अप्रोचेज अलग है, सब कुछ डिफरेंट है। सब कुछ डिफरेंट होने के बाद में इनके काम करने का तरीका भी डिफरेंट होगा, बट नेचुरल सी बात। अब मेरा काम क्या होगा, मैं काम को अलॉट करने के पहले मैं ये देखूं, क्या मेरे पास में जितने भी सेगमेंट्स में मुझको टीम को डिवाइड करना है, क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं कि जिस इंसान का जिस फील्ड में इंटरेस्ट हो उसको वही काम दूं करने के लिए। जिसको जो एक्सट्रोवर्ट है, जिसको पब्लिक में इंटरेक्ट करने में मजा आता है ना, उसको मैं पब्लिक इंटरेक्शन वाला काम दे दूं उसको मैं, राइट? जिसको सिटिंग एंड डिंग वाला काम समझ में आता है ना, उसको मैं डेटा मैनेजमेंट काम दे दूं कि भाई तू ये सिस्टम में बैठ और डेटा पे काम कर। तो हर इंसान की अपनी अलग स्किल सेट है, अपनी क्वालिटीज हैं, उसके हिसाब से वर्क को एलोकेट करना, उनसे वही काम करवाना जिस काम में उनको मजा आए, वो काम उनके लिए बर्डन ना बने, बोझ ना बने, राइट? मैंने ये इंडस्ट्री क्यों चुनी ट्रेनिंग की, बिकॉज ट्रेनिंग में जब भी मैं आके बैठता हूँ तो मुझे लग रहा होता है कि मैं अपने जुनून पे, अपने पागलपन के, अपने अपने पैशन पे काम कर रहा हूँ, ना कि ये मुझसे कोई काम करवाया जा रहा है। तो अभी भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझसे कोई बात करवा नहीं रहा है, ये मेरा अपना खुद का इंटरेस्ट है आपसे बात करना, और मेरा इंटरेस्ट क्या बन गया, मेरा प्रोफेशन बन गया। नेक्स्ट इज दैट
coordination with others. Teamwork will continue to play a major role. बिल्कुल सही बात है कि coordination with others, लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए आपने दो वर्ड सुने होंगे स्किल्स के नाम के ऊपर. एक टर्म्स को बोलते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स, एक का नाम है इंट्रापर्सनल स्किल्स, राइट. इंटरपर्सनल स्किल्स का मतलब ये होता है लोगों के साथ में मैं कैसे गेट अलोंग कर सकता हूँ, लोगों के साथ में मीटिंग्स में, पार्टीज में, डिस्कशंस में, प्रोफेशनल गैदरिंग्स में, पर्सनल गैदरिंग्स के अंदर हाउ कैन आई गेट अलोंग विद पीपल, यू नो. एंड इंट्रा का मतलब होता है हाउ कंफर्टेबल आई एम विद माई सेल्फ, क्या मुझको अपने आप से शिकायतें तो नहीं है, मुझको अपने आप से प्रॉब्लम तो नहीं है, डू आई लाइक माई सेल्फ, डू आई डोंट लाइक माई सेल्फ, वॉट ऑल आई लाइक अबाउट मी, वॉट आई डू नॉट लाइक अबाउट मी, देयर इन नंबर ऑफ थिंग्स. तो ऐसे ही कॉन्फ्लिक्ट भी दो होते हैं, पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं. इंटरनल भी होते हैं जो मेरा कॉन्फ्लिक्ट है मुझको लेकर के, दूसरा होता है एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट जो मेरा कॉन्फ्लिक्ट है दूसरों को लेकर के. तो फ्रेंड्स आई वुड से दैट जब तक आपका इंट्रा पर्सनल स्किल स्ट्रांग नहीं होगा, इंट्रा पर्सनल स्किल जब तक आप खुद को बेहतर तरीके से जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक ये प्रॉब्लम आपके साथ में रहेगी और कोऑर्डिनेशन में कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम जरूर आएगी, बिकॉज you might take certain challenges, certain opportunities which you do not want to do because it doesn't interest you, it doesn't attract you, राइट. तो इंट्रापर्सनल स्किल्स के थ्रू अपने आप को इनहेंस करना, अपने आप को समझना, अपनी स्किल्स को अपलिफ्ट करना इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट. मैं हमेशा अपने क्लासेस में, जब मैं लाइव क्लासेस में जाता हूँ, तो मैं सवाल करता हूँ कि भाई दो लोगों से कोई दो अच्छे फ्रेंड आपस में खड़े हो जाएं, दो फ्रेंड खड़े हो जाते हैं, तो मैं एक से पूछता हूँ दूसरे के बारे में, आप बताओ आपके फ्रेंड की स्ट्रेंथ क्या है या उनकी वीकनेस क्या है. उन्हें ज्यादा टाइम लगता नहीं है बताने में, वो आराम से बताते हैं कि मेरे फ्रेंड की स्ट्रेंथ ये है, वीकनेस ये. दूसरे से पूछता हूँ पहले वाले के बारे में, इवन ही ऑल्सो आंसर द सेम थिंग वेरी क्विकली. अब मैं क्या करता हूँ, दोनों से दोनों के बारे में नहीं पूछता, अब मैं उनसे पूछना चाह, आप बताओ आपको क्या लगता है आपकी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है. अब जब मैं उनके चेहरे रीड कर रहा होता हूँ ना, तो चेहरे पे बहुत सारा कंफ्यूजन भी होता है, लग रहा होता है कि ये कोई भी एक इंग्लिश की वोकैब का इस्तेमाल कर देंगे, इनको पता भी नहीं है कि उस वोकैब को उन पे अप्लाई करती भी है या नहीं करती, विद लॉट ऑफ कंफ्यूजन. कोई कन्विक्शन नहीं होता. अपने दोस्त की बारी आती है तो वी सेड इट विद कन्विक्शन, विद परसिवरेंस, विद 100% कॉन्फिडेंस, और जब अपनी बारी आती है तो वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस विद अस. So here we are lacking with intrapersonal skills more. So guys, work on your intrapersonal skills. If that has been enhanced, automatically your interpersonal skills will go. Or in with people, those who are good with interpersonal skills, they can coordinate with people. वो लोगों के साथ में काम कर सकते हैं. और फ्रेंड एक बात और कि सॉफ्ट स्किल्स का एक बहुत स्मॉल सा थ्योरी है, जो बेसिक प्रिंसिपल है. वो क्या है? वो कहता है अप्रिशिएट द डिफरेंसेस. आई रिपीट अगेन, अप्रिशिएट द डिफरेंसेस. और हम लोग करते क्या हैं, हम हमेशा डिफरेंस को क्रिटिसाइज करते हैं. मुझे जब मेरे ऐसा इंसान नहीं मिलता जो मेरी पर्सनैलिटी के जैसा नहीं होता, तो मैं बजाय उससे उसकी चीजों को सीख करके अपने अंदर इंकलकेट करने के बजाय जो चीजें उसकी मुझसे डिफरेंस है उस पर उसको हम क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं. तो दैट क्रिटिसिज्म विल नॉट फेच यू एनी बेनिफिट. और ये बात ध्यान रखिएगा, दुनिया में आपके जैसे लोग आपको अगर मिल भी जाते हैं तो वो आपके लिए बेवकूफी है. जब एक बच्चा कॉलेज में जाके एडमिशन लेता है तो वो उस तरह के बच्चों में उठना बैठना पसंद करता है उसके जैसे हों, जिनको या तो बंक करना पसंद है या सारे लेक्चर लेना पसंद है, वो उनको पसंद करता है. तो दैट इज हाउ उनकी पर्सनैलिटी में कोई अपलिफ्टमेंट नहीं होता. तो हमको थोड़ा सा रिवर्स पर्सनैलिटी के लोगों के साथ में उठना बैठना चाहिए, ताकि हम आर्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग, दैट आर्ट ऑफ दैट हाउ टू एडजस्ट विद पीपल, हाउ टू हैव पेशेंस. जब हम एक मिसमैच ग्रुप में जाके बैठते हैं तो वी एड सेवरल थिंग्स टू आवर पर्सनालिटी, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अ पार्ट ऑफ अ टीम एंड टू हैव दैट काइंड ऑफ अ गुड कोऑर्डिनेशन स्किल. नाउ इमोशनल इंटेलिजेंस, राइट, दिस इज द एबिलिटी टू करेक्ट perceive one's own and others feeling. अब बात हो रही है यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस की. अपनी फीलिंग्स को और दूसरे की फीलिंग्स को करेक्टली करेक्टली, यहाँ वर्ड ध्यान दीजिएगा, करेक्टली परसीव. करेक्टली मतलब सही तरीके से समझना, आपका तुक्का नहीं मारना, इंटरप्रिटेशन नहीं करना, परसेप्शन नहीं बनाना. हमारी तो फितरत होती है. फॉर एग्जाम्पल, अभी जब मेरा फेस स्क्रीन पे आया होगा तो आपने कुछ परसीव कर लिया होगा, मेरे बारे में ओपिनियन बना ली होंगी आपने. जो भी हमारे ऐसे लोग हैं जो लोगों को लेके ओपिनियन तैयार कर लेते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि वो ओपिनियन पहले बनाते हैं. अगर किसी को बुरा मान लिया तो वह जिंदगी भर बुरा ही रहता है, उसकी लाख अच्छाइयां भी सामने आ जाएंगी तो अच्छा बन नहीं पाएगा किसी भी हाल में, राइट. दैट इज हाउ इमोशनल इंटेलिजेंस इज, दैट डोंट बी रिएक्टिव, बी रिस्पॉन्सिव.
हालात पे रिएक्ट मत करिए, हालात पे रिस्पॉन्स करिए। रिएक्शन और रिस्पॉन्स में बहुत थोड़ा सा फर्क है, और वो फर्क इतना है, रिएक्शन हमारा इमोशनल सेटबैक होता है जो बहुत क्विकली निकल के आता है सामने, और रिस्पॉन्सेज हम सोच समझ के जनरेट करते हैं, राइट? सो अगर फीलिंग्स नंबर 2 में कह रहा है, इमोशंस हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्रोफेशनल लाइफ फॉर अ लॉन्ग टाइम। टुडे द रियलाइजेशन prevails that they can also decide success and failure in this sphere of life, because we always work with people. She and her actions are always subject to the influence of emotion. इमोशनल इंटेलिजेंस, ध्यान दीजिएगा, ये आपसे बोल रहा है कि पहले लिस्ट में नहीं था, एक्सक्लूडेड था, इसको बाद में ऐड किया गया है। आज की तारीख में आपके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब लगने के बाद आपकी ग्रोथ आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस पर ही डिपेंड करती है, दैट हाउ रिस्पॉन्सिव, हाउ रिसेप्टिव यू आर, टॉकिंग अबाउट योर पर्सनल लाइफ, योर प्रोफेशनल लाइफ, how you dealt with people, how you interact with them, did you understand their problem, do you use your sympathy and empathy both, राइट? एक और बात बताऊंगा, सिंपल टर्म्स में समझिएगा इमोशनल इंटेलिजेंस को। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट योरसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, जब तक मैं इस प्रोफेशन में नया आया था, मैं अपने आप को मैंने 2-3 साल तक एक्सेप्ट नहीं किया था, मैंने अपने आप को, बिकॉज आई हैव अ लीन पर्सनैलिटी, दुबला पतला इंसान हूँ, शक्ल से भी बहुत मेच्योर दिखाई नहीं पड़ता, तो मुझको अपने आप को एक्सेप्ट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। लोगों ने मुझको ट्रेनर मान लिया था बिकॉज ऑफ माय कम्युनिकेशन स्किल, बिकॉज ऑफ माय स्ट्रेंथ, बिकॉज ऑफ माय कॉमन सेंस, दे हैव एक्सेप्टेड इट दैट आई एम अ ट्रेनर, बट आई वाज हैविंग अ डिफिकल्ट टाइम, राइट? बट वन डे व्हेन आई रियलाइज दैट कि भाई ये प्रॉब्लम मेरी तरफ से आ रही है, मैं अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, दुनिया एक्सेप्ट कर चुकी है मुझको, दैट डे द कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंड। तो दैट इज हाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड हु वी आर। अपने आप को एक्सेप्ट करना है, अपनी स्ट्रेंथ को भी एक्सेप्ट करना है, अपनी वीकनेस को भी एक्सेप्ट करना है। ध्यान दीजिएगा, हमने जो कुछ भी अपनी पर्सनालिटी में ऐड किया है हमारे एनवायरनमेंट के हिसाब से, हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से, अगर आपको कुछ भी चेंज करना है, अपना माहौल चेंज कर दीजिए, अपना एनवायरनमेंट चेंज कर दीजिए, नए नए एक्सपीरियंस गेन कीजिएगा, तो नई नई चीजें सीखने को मिलेगी आपको। डोंट फॉलो द सेम ओल्ड पाथ व्हिच यू आर फॉलोइंग फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। नाउ जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, अब यहाँ पे क्रिएटिविटी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको इसको लेकर के सारे के सारे काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू पॉसिबल नहीं है, और जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फेल होती है वहां होता है डिसीजन मेकिंग स्किल्स। फॉर एग्जांपल, एक कस्टमर ने फ्लाइट से, जेट एयरवेज से अपना सफर कंप्लीट किया, और सफर कंप्लीट करने के बाद में उसने जेट एयरवेज में एक मेल डाला। जेट एयरवेज ने एक रोबोटिक प्रोग्राम ऑलरेडी फिट किया हुआ था कि ऑटोमेटिक रिप्लाई के लिए। उसने एक मेल डाला, थैंक यू सो मच जेट एयरवेज, प्लीज मेरे वर्ड ध्यान से सुनिएगा, थैंक यू सो मच जेट एयरवेज फॉर फ्लाइंग मी टू बैंगलोर एंड माई लगेज टू हैदराबाद। Thank you so much Jet Airways for flying me to Bangalore and my luggage to Hyderabad. And that system में जो पहले से फीड था, थैंक यू पढ़ा उसने, थैंक यू मतलब अप्रिसिएशन, और फौरन जवाब आ गया, वी आर हैप्पी टू हियर दैट यू हैड अ गुड टाइम विद अस, डू फ्लाई विद अस अगेन। तो यहाँ के ऊपर थैंक यू जो डेटा फीड था उसके हिसाब से उन्होंने अप्रिसिएशन मेल बना के भेज दिया, लेकिन ये आप और हम समझ सकते हैं कि ये अप्रिसिएशन नहीं था, ये सरकास्टिक वे में कंप्लेंट थी, राइट? सरकास्टिक वे में कंप्लेंट थी। तो जहां के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्री प्रोग्राम थिंग्स फेल होते हैं, वहां पर ह्यूमन इंटेलिजेंस की बात आती है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज हाउ यू नीड टू डिसाइड दैट डिसीजन मेकिंग स्किल्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन फ्रेंड, हमारे साथ तो प्रॉब्लम ये है ना कि हमने हर काम को इन्फ्लुएंस होकर किया है, हमें हर काम के लिए लोगों ने ओपिनियंस दी हमको, हमारी आगे पढ़ाई क्या करना है, 10th में कौन सा सब्जेक्ट लें, 12th में क्या लें, ग्रेजुएशन में क्या पढ़ाई करें, हम तो हमेशा इन्फ्लुएंस रहे, हमने कभी अपने लिए डिसीजन तो लिए ही नहीं है। और डिसीजन क्यों नहीं लिए? क्योंकि अगर हम फैसला लेंगे, हम डिसाइड करेंगे, तो इल्जाम हम पे लगेंगे, तुमने किया था, तुमने डिसाइड किया था। हम तो दूसरे के साथ ब्लेम गेम खेलने के लिए कभी डिसीजन लेते ही नहीं। दूसरे के साथ ब्लेम गेम करना है, तुमने ऐसा कहा था, तुमने ऐसा बोला था, बिकॉज ऑफ विच आई डिड इट, तो मुझको दूसरे पे इल्जाम लगाना है, इसलिए मुझको लाइफ में डिसीजन लेना ही नहीं किसी भी हाल में। तो फ्रेंड्स, जब तक आप खुद के छोटे छोटे डिसीजंस लेकर के उनकी अहमियत को, उनकी वैल्यूज को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, उनके आउटकम्स को नहीं समझेंगे, और अपनी पर्सनैलिटी, अपने एट्रीब्यूट्स को, अपने एटीट्यूड को नहीं समझेंगे, तब तक आपके लिए प्रॉब्लम परसिस्ट करेगी। To start taking small small decisions in your day to day life, and one fine day you are going to have a faith in you, and you are going to
take bigger risk on the basis of your own decisions, and that is how you will inculcate a good decision making skills in you. But please move to the next slide now. Yeah, Hassan bhai, next slide please. Now, again, say that service orientation, empathy is a basic requirement for this, because service orientation not only means fulfilling expressed wishes, but also, sorry, but also for foresighted anticipation of these. Sorry. No, सर्विस ओरिएंटेशन आज की तारीख में अगर इंजीनियर भी काम करता है, अगर उसने मैकेनिकल से, सिविल से, इसी से कोई डिग्री हासिल करी है उसने, अगर तो हमारे पास में नई प्रोफाइल मार्केट में आई है, हम कहते हैं सर्विस इंजीनियर। तो ये जो सर्विस इंजीनियर है, ये घर पे बैठ के काम नहीं करता, अपने ऑफिस में बैठ के काम नहीं करता। इसका काम ये होता है कि ये अपने टूल बॉक्स लेकर के, किसी की टीवी खराब हो गई है, फ्रिज खराब हो गया है, मशीन खराब हो गई, इनका काम ये होता है कि वहां पे जाते हैं और जाने के बाद में प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब इसमें सर्विस ओरिएंटेशन का इंपॉर्टेंस यूं होती है कि अगर सर्विस ओरिएंटेशन डजंट मीन दैट कि आपने टीवी को ठीक कर दिया, लेकिन टीवी को ठीक करने के पहले जो आपका जो ड्रेसिंग सेंस था, आपका अटायर था, आपका बिहेवियर था, मसाला चबाते हुए या मुंह से जो है सिगरेट की बदबू आ रही है, नाखून बड़े हुए हैं, बाल बहुत मेसी होके रखे हुए हैं, एवरीथिंग इज इन अ मेस, तो दैट डजंट मीन दैट आप यू आर अ गुड टेक्नीशियन। आप टीवी को रिपेयर कर दिया आपने, लेकिन सर्विस ओरिएंटेशन स्किल्स का होना इंपॉर्टेंट है। You should be aware about the behavior which you need to carry, how to dress up yourself. The basic health and hygiene things are very, 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 very important to understand this, right? Along with that, when you open your mouth, so in that case, that looks that that you are a fine professional. आपके अंदर service orientation skills भी हैं, along with we have to understand the ground reality. Number ninth is negotiation skills. 2005 was still able to negotiate. Nevertheless, it means important. It is negotiated anywhere where different interests clash in every collaboration and every business deal. अब negotiation का मतलब ये बताया गया है कि ये 2015 में भी लिस्ट में था और 2020 की लिस्ट में भी है। इसका मतलब ये होता है कि जो negotiation है बड़ी इंपॉर्टेंट है। negotiation की शुरुआत कहाँ से होती है? नेगोशिएशन की शुरुआत कहाँ से होती है? अगर एज एन लाइक बेसिक बात करूं तो आप जब जॉब के ऊपर जाएंगे, आपके साथ में सैलरी नेगोशिएशंस होंगे। अगर आप एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो आप बिजनेस को लेके आप नेगोशिएट करेंगे, आप गुड्स को लेके नेगोशिएट करेंगे, आप रॉ मटेरियल को लेके नेगोशिएट करेंगे, आप जब दुकान पे सामान लेने जाते हैं तब आप नेगोशिएट करते हैं। आप मैम ये नेगोशिएशन जो है हमारा, ये हमारी लाइफ का हिस्सा ही है, इट इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो एवरी नाउ एंड देन वी डू नेगोशिएशंस। हम सब्जी लेने जाते हैं, वॉट एवर वी गो एंड बाय वी नेगोशिएट। हम चाहते हैं कि हमें कुछ पैसे कम ही देना पड़े तो बहुत बेहतर रहेगा हमारे लिए। दैट नेगोशिएशन स्किल्स, अब ये नेगोशिएशन स्किल्स इन टर्म्स ऑफ व्हाट, कंपनी के एंड पे बेनिफिट के लिए। क्या आपके पास नेगोशिएशन स्किल्स हैं ताकि आप कंपनी के लिए मैक्सिमम बेनिफिट जनरेट कर सकें, आप मीनिंगफुल बिजनेस डील्स को क्रैक कर सकें जहां पे कंपनी बेनिफिट ज्यादा हो। देखिए कोई भी जब मार्केट में प्रोडक्ट को बेच रहे होते हैं ना, तो उसमें एक होता है मैक्सिमम प्रॉफिट होता है, एक मिनिमम प्रॉफिट होता है, और एक होता है ब्रेक इवन होता है, राइट? तो हर कंपनी चाहती है कि उसके लिए प्रॉफिट मेकर साथ में आए, एंड दैट इज हाउ योर नेगोशिएशन स्किल्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड माय फेवरेट, कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी। माय फेवरेट, ये मेरा फेवरेट क्यों है? इसके पीछे बहुत सिंपल रीजन है, राइट? इट सेज दैट द एबिलिटी ऑफ योर ब्रेन टू अडॉप्ट टू चेंज। आपके ब्रेन की एबिलिटी और कैपेसिटी, जब वो कितनी तेजी से किसी भी चेंज को अडॉप्ट करता है, राइट? चेंज को अडॉप्ट करता है। तो फ्रेंड्स, ये कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? चेंज को अडॉप्ट करेंगे तो लाइफ में आगे बढ़ेंगे, अगर चेंज को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। जो कुछ भी मार्केट में नया हो रहा है, क्रिटिसाइज करना छोड़ दीजिए और अपने अंदर स्किल्स को इनकलकेट करना स्टार्ट कर दीजिए। स्टॉप क्रिटिसाइजिंग प्लीज। अपनी लाइफ में अपनी चीजों को लेके क्रिटिसाइज करना जब तक बंद नहीं करोगे, आगे नहीं बढ़ोगे। प्लीज अडॉप्ट टू दिस चेंज। जो नहीं आता उसे सीखो, ना कि उसके ऊपर आप लोग परेशान हो, अपने आप को खराब बेकार के लिए एंग्जाइटी में लेके जाओ, डिप्रेशन में लेके जाओ। प्लीज डोंट डू इट।
और कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी में कहा जाता है ऐसी कोई भी स्किल नहीं है जिसपे आप 15 डेज फोकस होके काम करें, 15 दिन आप फोकस होके काम करें और वो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा ना बने, वो बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर मेरा कॉलेज मेरे घर से 10 किलोमीटर दूर या 15 किलोमीटर दूर है, तो जब मैं पहली बार जाऊंगा तो मैं रास्ते पे फोकस बना के बैठूंगा, चौथी बार जाऊंगा तो फोकस थोड़ा कम रहेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा 10 से 15 दिन के अंदर कि मुझे पता भी नहीं होगा कि मैं कॉलेज से घर का पहुंच गया, मैं ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग को सब डायरेक्शन याद होंगे, कहाँ से राइट लेना है, कहाँ से लेफ्ट लेना है, एंड आई रीच ऑटोमेटिकली। तो ये हमारी ब्रेन की कैपेसिटी है। तो हम ब्रेन की कैपेसिटी को तो अंडर एस्टिमेट किसी भी हाल में नहीं कर सकते। इट हैज इमेंस पोटेंशियल। और दुनिया में अब तक जिस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल किया ना, द मैक्सिमम ब्रेन यूटिलाइज्ड बाय समबडी, दैट इज 22%। तो अब तक 22% में इन्वेंशन हो रहे हैं, 22% में लोग जो हैं वो दुनिया में जंग जीतने की बात कर रहे हैं। तो अगर हम अपने दिमाग का 11-12% इस्तेमाल करेंगे ना, तो हमारा करियर जो है ना वो श्योर शॉट है, सिक्योर्ड है, उसमें कहीं से लेके कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दीज आर द स्किल्स एंड आई वांट यू पीपल टू प्रैक्टिस ऑन डेली बेसिस। डेली बेसिस ये चीजें, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट काम बात ये हो जाएगी कि ये जो चीजें हैं, 10 जो बातें बताई हैं मैंने आपको, ये ऑल 10 स्किल्स ना, इसको आप रोज इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्विस ओरिएंटेशन की बात कर लीजिए, राइट, निगोसिएशन की बात कर लीजिए, राइट, कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, ये आपकी डेली लाइफ का हिस्सा है। इसको अगर आप डेली इम्प्रोवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो ऑटोमेटिकली आई कैन चैलेंज यू ऑन दिस कि विद इन अ मंथ डाउन द लाइन यू विल सी अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन इन योर थॉट्स। और वन थिंग आई वुड लाइक टू से फ्रेंड्स, दैट ये मेरा एक फेवरेट स्टेटमेंट है जिसको मैं बहुत खुल के बोलता हूँ कि दिमाग में कचरा होगा तो मुंह से बदबू आएगी। व्हेन आई यूज द स्टेटमेंट दिमाग में कचरा होगा तो मुंह से बदबू आएगी, इसका मतलब ये होता है कि हमारे दिमाग में जो भी थॉट्स होते हैं, जो भी कंटेंट होते हैं, उनके बाहर निकलने का एक ही तरीका है, दैट इज माई कम्युनिकेशन, दैट इज माई कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट। और अगर आपके दिमाग में बैड थॉट्स नहीं है, निगेटिव थॉट्स नहीं है, स्टूपिड थॉट्स नहीं है, कचरा नहीं है दिमाग के अंदर, तो आपके माउथ से नॉलेज आएगी, इंफॉर्मेशन आएगी, एंड दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू बी अप्रिशिएटेड, राइट। तो चेंज योर कंटेंट इन माइंड। जब दिमाग का कंटेंट बदलेगा तो मुंह से बाहर निकल के आने वाला कंटेंट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा आपका। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सर्व अ वेरी गुड एंड हेल्दी डाइट टू योर सेल्फ, राइट। तो एक सवाल करता हूं मैं आपसे, और इन द ये जो सवाल जो करने वाला हूं मैं आपसे, भी सवाल का जवाब दीजिएगा मुझको आप इन द फॉर्म ऑफ योर क्वेश्चंस, और चैटिंग के थ्रू जवाब दीजिएगा मुझे। तो मेरा सवाल ये है आपसे, दैट वी हैव टू बुल्स इन अवर माइंड, वी हैव टू बुल्स in our mind, and they are fighting together all the time. One is good and one is bad, and my question is, who will win? जीतेगा कौन? So Hasan bhai, this is all from my side. I'll be looking for like question and answers now. Yes, Salman bhai. Actually, the question and answers have not been raised by the participants till now. Okay. So I will request all the participants, अगर आपके पास कोई questions है तो आप please raise करिए। Q&A section है आपके सामने, उसके अंदर आप type कर सकते हैं, या फिर आप अगर you have any problem in typing in due to the long language constraint, तो आप हमसे आप अपना hand raise कर सकते हैं, so हम आपको unmute करेंगे और आप अपना question जो है सलमान सर से पूछ सकते हैं live. So we can wait for around 2 minutes, two three Sure, sure. minutes, बिल्कुल, 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 someone responds. बिल्कुल. In the meantime, I would like to give you the answer of my two questions जो शुरुआत में मैंने आपसे कहा था, I can और I can't का, और the last question which I just asked. जो मेरा जो पहला क्वेश्चन था, आई कैन आई कांट का, मैंने आपसे कहा था एक पेज पे लिखने के लिए, अगर आप में किसी ने भी लिखा है तो आई कैन को तो मैं बिल्कुल छूंगा भी नहीं, आई विल नॉट टच आई कैन, बिकॉज मुझे मालूम है कि वो आप कर सकते हो। लेकिन आपकी आई कांट की लिस्ट शायद आई कैन से ज्यादा लंबी भी होगी, राइट, वो उस लिस्ट में कंटेंट बहुत ज्यादा होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है मेरा कि जितने भी आई कांट आपने लिस्ट में डाले हैं या आपके दिमाग की लिस्ट में पड़े हुए हैं, उनमें से कितने आई कांट आपके ट्राइड एंड टेस्टेड है? मेरा एक्सपीरियंस कहता है हमारी लिस्ट में मैक्सिमम आई कांट वो हैं जिनको हमने दिमाग में रखा, दिमाग में सोचा, और दिमाग में ही बोल दिया कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं ये नहीं कर सकता। मेरा मानना ये है अबाउट 90% और 95% आई कांट हमारे नेवर ट्राइड नॉट टेस्टेड है, इन पे हमने कभी कोई एफर्ट्स नहीं लिया,
कोई इनिशिएटिव नहीं लिया और हमने उनको मान के रख लिया अपने अंदर कि ये हम नहीं कर सकते। तो पहला सवाल तो ये हो गया कि ऐसी कोई भी चीज जो आपने ट्राई नहीं करी है, अपने एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं, प्लीज उसको आई कांट में मत डालिए, बिकॉज यू हैवंट ट्राइड एंड टेस्टेड। और माय सेकंड क्वेश्चन जो था मेरे कि हु विल विन द फाइट, गुड और बैड, इस सवाल का जवाब भी आपको दे दूं मैं आपको फ्रेंड्स। आप या तो कोई गुड बोलेगा या कोई बैड बोलेगा, बट द आंसर टू द क्वेश्चन इज whom we feed the most। जिसको हम ज्यादा खाना खिलाएंगे, उसमें ज्यादा ताकत आएगी, वो जीतेगा। अगर हम हमारे अंदर की अच्छाइयों को ज्यादा खाना खिलाएंगे तो अच्छाइयां ज्यादा पावरफुल होंगी, बुराइयां हार जाएंगी। और बुराई को खाना खिलाएंगे, नेगेटिव थॉट को खाना खिलाएंगे तो वो ताकतवर बनेंगी, उनके आगे अच्छाइयां हार जाएंगी। तो whom we feed the most is the answer। तो you have like a better judgment कि यू नो कि हम किसको खाना बेहतर खिलाएं। जी। We have a question from Mr. John Wani. यस। He is asking how to choose a right path for a future journey after undergraduation course. ओके। सो सी जॉन, मैं यहाँ पे आपको एडवाइस करूंगा, मैं हमेशा बच्चों को एडवाइस करता हूँ कि जब भी अपने करियर की बात आए ना, तो प्लीज इन्फ्लुएंस होके काम मत करिएगा। अगर आप अंडर ग्रेजुएशन कोर्स की बात कर रहे हैं, आपके पास में जो भी ऑप्शंस हैं, चाहे वो बीकॉम हो, बीबीए हो, बीए हो, बीएससी हो, बीई हो, व्हाटएवर इट इज, मेरा पर्सनल सजेशन ये रहेगा आपसे, इन प्लेस ऑफ टेकिंग रेफरेंसेस एंड इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम अदर पीपल, इट इज बेटर कि आप एक काम करिए, गूगल पे जाके सर्च मारिए, कंटेंट जाके देखिए, राइट। जिस कंटेंट में आपको इंटरेस्ट आए, बीबीए में आए, बीकॉम में आए, बीई में आए, बीएससी में आए, जिस कंटेंट में आपको इंटरेस्ट आए, आप उसको अपनी फील्ड में लेके जाइए। क्योंकि जिस चीज में आपको इंटरेस्ट होगा, उसके लिए पढ़ने के लिए आपको अपने को प्रेशराइज नहीं करना पड़ेगा। वो इंटरेस्ट जो है ना, आपको ऑटोमेटिकली बुक्स की तरफ लेकर के आएगा। दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू हैव योर इंटरेस्टेड डोमेन, राइट। तो इंटरेस्ट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई मुझसे ये पूछेगा कि सर कौन सी फील्ड में ज्यादा स्कोप है, किस फील्ड में ज्यादा चांसेस है, तो मैं आपसे बोलूंगा कि मार्केट में अगर ध्यान से देखें आप अगर, तो वी हैव गॉट क्रिकेटर्स, वी हैव फुटबॉलर्स, वी हैव आर्चर्स, वी हैव एवरीबडी। जिसका जिस फील्ड में इंटरेस्ट था, उन्होंने अपने इंटरेस्ट को 100% डिवोट किया, 100% चीजों को अपने अंदर एक्वायर किया, इनकलकेट किया बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट, एंड फाइनली दे आर एबल टू अचीव ग्रेट हाइट्स इन देयर प्रोफेशनल लाइफ। So that is the way you can figure it out, that which line, which domain you must opt for. John, I hope I have answered your query. Further, if you want to add a different question to it, please go ahead with that. There is another question from Mr. Junaid Kutai जी। on Salman sir's question. If the person has the environment based on mainly bad habits, in that case, the bad goal will win. But if a person has faced many hardships and has a potential to achieve his goal, then the positivity will win. Definitely, very true, very true। See, environment की बात करते हैं हम अगर, तो environment doesn't mean that we are going to learn everything from the environment। Environment is being chose by us। We are the person who chose to be a part of, we select in which environment I want me to be a part of it। हम चुनते हैं कि हमको किस environment में उठना बैठना है, किस तरह के लोगों की कंपनी में बैठना है हमको। तो जो environment का जो selection है ना फ्रेंड, वो हमारा अपना ही है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग माई कॉलेज लाइफ, मेरे क्लास के स्टूडेंट से कम पढ़ती थी और मेरे फैकल्टी से ज्यादा पढ़ती थी। तो इवन टुडे आई कैन से दैट मिस्टर आमिर इलियासी एंड लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर चंचल कुमार भुट्टन वाज वन ऑफ माय बेस्ट बडीज ड्यूरिंग माय कॉलेज लाइफ। क्योंकि शायद मेरी जो भूख थी वो कुछ नया सीखने के लिए थी, और मुझको मेरे साथ के लोगों से वो सब मुझे मिलता नहीं था। तो बिकॉज ऑफ विच आई हैड अ डिफरेंट एनवायरमेंट। तो ये जो वर्ड है ना, एनवायरमेंट बेस्ड ऑन मेनली बैड हैबिट्स, तो ये नहीं होता। आप अपने एनवायरनमेंट को सिलेक्ट कर सकते हो। जब एक इंसान सामने आता है, फॉर एग्जांपल मैं अगर सामने आऊंगा, मैं आपकी जुनेद, तो मेरे अंदर प्लस पॉइंट भी है, मेरे अंदर माइनस पॉइंट्स भी हैं। तो अगर आप मेरे माइनस पॉइंट्स को एलिमिनेट करके बिकॉज ऑफ माई प्लस यू वांट टू बी अ फ्रेंड ऑफ माइन, अप्रिशिएटेड। लेकिन आप मेरे पास क्यों आ रहे हो? बिकॉज ऑफ माई बैड क्वालिटीज, तो वो आपकी चॉइस है। बिकॉज ऑफ माई गुड क्वालिटीज, वो आपकी चॉइस है। तो अल्टीमेटली जो एनवायरमेंट जो क्रिएट जो हो रहा है ना, वो मेरे अपने चॉइसेस के बेस पे हो रहा है। Nobody else is opting it out for me, nobody else is opting, I am opting out for myself। मैं चुन रहा हूं, मैं सिलेक्ट कर रहा हूं अपने लिए कि मुझे किस एनवायरनमेंट में उठना बैठना है। बिकॉज होता क्या है कि हमको लोगों की पर्सनैलिटीज, उनकी हैबिट्स हमको अट्रैक्ट करती हैं। अब या तो प्लान्ड है
या वो अनप्लान्ड है, लेकिन कहीं ना कहीं डिसीजन मेरे हाथ में है कि मैं किनके साथ में उठूंगा बैठूंगा मैं। जी भाई। So I think the questions are uh, Uh, as already I can covered. see, I can see by one statement from Sahil that I am very much depressed nowadays as I didn't get a suitable job. Yes, yes, there is one in the chat section. Right in the chat section, and again in chat section I have one more. How can I get a suitable job? Okay, sir, good one. Good will conquer. Okay. So here, Sahil, I would like to say one thing that first of all, that the word depression is very very negative word, very very negative word, or it has been advised by all the people, all the achievers in their life that जब तक हमको हमारे मतलब की suitable job नहीं मिलती है, हम घर बैठ के महीना साल उसका वेट नहीं कर सकते। क्योंकि जैसे जैसे हमारी डिग्री कंप्लीट होने के बाद में और हमारे करियर में गैप आता जाएगा, हमारे लिए जॉब का मिलना प्रॉब्लमेटिक रहेगा। लेकिन अगर आप कोई भी जॉब ग्रैब करते हैं, कोई भी जॉब, चाहे वो आपके इंटरेस्ट की हो या ना हो, दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू गेन प्रोफेशनल एक्सपोजर एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। और शायद जो चीज आपको आज अच्छी नहीं लग रही है, आज आपको लग रहा है कि उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है कि आने वाले वक्त में आपको उसके अंदर उतना मजा आना शुरू हो जाए कि आप उसी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहें। देयर इज नो डाउट अबाउट इट, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विद यू। And I have several examples. I have several examples because the students I'm dealing with nowadays, they all are looking for the engineering degree, and out of the 100% of the engineering student, 20 to 25% student they don't opt for technical job, वो technical job opt ही नहीं करते, वो non tech job में जाते हैं, and they are stars in their own field. तो इनिशियली मैं आपको बोलूंगा कि आप कोई भी जॉब ग्रैब करें, कोई भी जॉब को आप ग्रैब करिए, मूव ऑन करिए। अगर जॉब नहीं आएगी, पैसा नहीं आएगा, तो डिप्रेशन आएगा। पैसा डिप्रेशन भगाने का एक तरीका है कि अर्निंग्स आना चाहिए, और उसके लिए यू हैव टू ग्रैब वन जॉब। प्लीज गो अहेड विद दैट। जी हसन भाई। There's another question from Mr. Irshad Ahmed. How to जी, manage both education and business? हाउ टू मैनेज। ओके, यहाँ बेटा हम बात कर रहे हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में। टाइम मैनेजमेंट इज ऑटोमेटिकली अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल विच वी हैव टू वर्क ऑन। हम बिजनेस की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, तो दोनों को हम साइमल्टेनियसली लेके बिल्कुल चल सकते हैं। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। For example, one of my student, he raised a very simple question like during his thing कि सर मैंने बोला था कि बेटा आपको रीड करना है, रीडिंग I have will a give question, you sir. a different thought process, Can रीडिंग I? से आपको बहुत, या सॉरी, हेलो, Sir, I have a question, sir. My name is. Yes, hello, sir. जी जी Hello, प्लीज, good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। Actually, sir, actually, I have pursued MPhil in English. ओके। Recently, I was dropped in teacher list, so right now I am very much depressed. The word depression is, of course, negative, हम्म। but nowadays I couldn't properly understand what should I do in future. ओके ब्रदर, व्हाट इज योर नेम? So because I belong to sir Sahil, sir Sahil, sir. साहिल। साहिल, हैव यू एवर हर्ड दैट इन्नल्लाह मा Yes, sir. साबिरीन? Yes, sir. Of course, why not, sir? Only heard that and you also believe in that? Yes, I believe in it. Right. So if you believe in that, Sahil, see that, Inna Allaha ma sabirin, Allah Ta'ala sabr karne walon ke saath hai, right? And Sahil, to be very honest with you, I have known many people as of now, those who are looking for a job in their own domain, they could not get the job. What they did in order to, be having, high values and high like moral values, what they did, they they took a job, उन्होंने जॉब ले ली, उन्होंने कोई भी जॉब ले ली उन्होंने। और जॉब को लेने के साथ साथ जो उनकी हंट थी कि जो जिस डोमेन में उन्हें काम करना है, जिस फील्ड में उनको जाना है, वो उनकी हंट लगातार जारी रही। वो लगातार गूगल के थ्रू वेबसाइट्स पे जा करके इंक्वायरीज करते रहे, गूगल पे जाके वहां से कंपनी की लिस्ट निकालते रहे, कॉल करते रहे, एचआर को मेल भेजते रहे, इंटरेक्ट करते रहे। एक बार ध्यान दीजिएगा, साहिल को फॉर्म करने की अप्रोच जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रोच का मतलब ये हो गया, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी भी कंपनी की वेबसाइट पे जाकर के मेल डालूंगा तो उनके पास में ऐसा हजारों और लाखों का डेटाबेस है।
लेकिन अगर मैं कंपनी की साइट पे जा करके वहां का लैंडलाइन नंबर निकालूं, लैंडलाइन नंबर निकालने के बाद में वहां पे रिसेप्शन पे कॉल लगाऊं, रिसेप्शन पे कॉल लगाने के बाद में मैं एचआर के तक पहुंचूं, एचआर के जाने के बाद में अपना इंट्रोडक्शन दूं कि मैम हाय दिस 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 एंड दिस इज दिस, तो ये जो इंटरेक्शन होगा ना, ये इंटरेक्शन की इमेज एक एचआर के दिमाग में छप जाएगी। और अगर आपके इंटरेक्शन से जरा सी भी पॉजिटिविटी मिलेगी उनको अगर, तो अब जब आप उनके ईमेल आईडी लेने के बाद उनको आप मेल भेजेंगे तो वो आपके नाम के रिज्यूम को जरूर खोलेंगे। The very first trick is this, that please do not send your mail like this. Interact with the HR person, have courage, call them up, have a words with them, राइट। उनको आपका नाम पता होना चाहिए कि अच्छा मेरी साहिल से बात हुई थी, साहिल का रिज्यूम आने वाला है मेरे पास में। एंड द सेकंड थिंग इज दैट आई वांट ऑल ऑफ यू टू बी वेरी एक्टिव ऑन वेयर, on LinkedIn. LinkedIn is going to be an awesome platform, awesome platform, right? जिनको हम जॉब प्रोवाइड नहीं कर सकते उनके प्रोफाइल के अंदर वो रिज्यूम शेयर करते हैं, तो वी वी कमेंट फॉर बेटर रीच। दैट इज हाउ वो रिज्यूम जो है वो एक दो तीन चार से होते हुए हजारों में पहुंच जाता है। एंड लिंक्डइन इस बात, आई एम अ विटनेस ऑफ इट, यू नो दैट मेनी पीपल दोज हु सेड दैट कि वो उस कमेंट की वजह से जिनके पास जीरो ऑप्शंस थे, उनको तीन चार या चार कॉल मिली उनके इंटरव्यू के बारे में। This is what I want you to follow, dear. Please follow this. Okay, thank you, sir. Thank you very much. Most welcome. Thank you so much. जी हसन भाई। There is another question from Mr. Musaib Muzaffar. How जी to persuade intra-self to adopt new changes? As it seems easy, but would like to say it personally, it's much hectic when it comes to execution. Okay, let's see, brother. This is not going to be that difficult. The way you are taking it, it is going to be a very easy job. I believe that. In that in that way, I would only say one thing. Only you need to give 30 minutes to yourself. Every day, you need to give 30 minutes to yourself before you go to bed. Make sure that you are done with your calls, you are done with your WhatsApp and everything. वो 30 मिनट्स में आपको अपने आसपास आपका मोबाइल फोन भी ना हो, कोई नॉइस भी ना हो, घर की किसी आइसोलेशन में जाके, छत पे जाके, बालकनी में जाके, बाहर निकल के आधा घंटा अपने आप से बात करिए। इसको हम कहते हैं सेल्फ टॉक। और ये जो सेल्फ टॉक है ना, ये सेल्फ टॉक आपको बताती है कि शुरुआत से लेकर के खत्म तक जो पूरा दिन जो था आपका, उस दिन को आपने कहां पर स्पेंड किया, उस दिन के जो वर्थ पार्ट था वो क्या था, और जो वेस्ट पार्ट था वो क्या था। जब आप वर्थ और वेस्ट को सेग्रीगेट कर लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली मालूम पड़ेगा कि जहां पे मेरा जो वर्थ पोर्शन था पूरे 16 घंटे का, 8 घंटे में सो लिया, 16 घंटे बचे मेरे पास में, 16 आवर्स की जो यूटिलिटी है मेरे पास में वो क्या थी, आपको मालूम पड़ेगा कुछ भी नहीं थी। इन शॉर्ट कुछ भी नहीं थी। सिर्फ बैठ करके, आइडियल बैठ करके सोचने से चीजें नहीं बदलेंगी डियर फ्रेंड। आइडल बैठ के चीजें नहीं बदलेंगी। यू हैव टू कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। और अगर हम में से कोई भी इंसान ऐसा है जो अपने कंफर्ट जोन के साथ में फाइट करना नहीं चाहता, वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कभी नहीं कर सकता। जो चीजें आपने कभी नहीं करी हैं, जो भी टास्क आपने कभी अंजाम नहीं दिए हैं, जो कुछ भी आपने कभी ट्राई नहीं किया है, प्लीज स्टार्ट डूइंग इट। और अपने आप से, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आ गई यहाँ के ऊपर, ये जो आपका जो माइंड है ना, इस माइंड की खुराक है ना। हमारी बॉडी में भी हम अच्छे न्यूट्रिशन खाते हैं, राइट। अभी पेंडेमिक चल रहा है तो हमारी जो इम्यूनिटी है ना, उस पर बहुत ध्यान दे रहे हैं कि विटामिन भी हो, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, विटामिन सी भी हो, विटामिन डी भी हो, विटामिन ए भी हो, सब मिले हमको, ताकि हमारी बॉडी अंदर से स्ट्रांग रहे, तमाम बैक्टीरिया से फाइट कर सके। दूसरी बात आती है कि मेरी जो दिमाग है मेरा, इसकी भी डाइट होती है। दिमाग की डाइट क्या होती है? दिमाग की डाइट दिखती नहीं है। दिमाग की डाइट कौन सी है? दिमाग की डाइट थॉट्स है। ये दिमाग की खुराक क्या है? वो थॉट्स हैं। जो भी हम सोचते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, ये दिमाग की डाइट है हमारी। जिसका कंटेंट ज्यादा दिमाग में जाएगा, दिमाग आपका उस तरफ ही जाएगा। आप लोगों में कमियां ज्यादा निकालेंगे तो आपको हर इंसान में कमियां दिखाई पड़ेंगी। आप लोगों में अच्छाइयां निकालेंगे तो आपको हर इंसान में खूबियां दिखाई पड़ेंगी। तो जिस तरीके से आप सोचना चाहते हैं, आपके लिए दोनों ऑप्शन खुले हुए हैं, दोनों दरवाजे ओपन है आपके लिए। नो डोर इज लॉक्ड, राइट। और तीसरी चीज आती है हमारी सोल। थर्ड क्या है? हमारी सोल। तो वी हैव थ्री थ्री राइट्स। एक हो गया मेरी हेल्थ की, एक हो गया मेरे माइंड की, तीसरी आ गई मेरी सोल। और ये जो सोल है ना, ये सोल बड़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। सोल की डाइट क्या है? इस सोल की डाइट है that the company, that the kind of, that the niyat, that the iman which we are having inside with us, that is the thing. Believe in God, not verbally but firmly from inside.
not verbally नहीं believe करना हमको, firmly अंदर से believe करना. The way I said innallaha ma sabirin, yes innallaha ma sabirin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in means iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, right? Getting my words? Rabbi inni maghlubun fantasir means Rabbi inni maghlubun fantasir. That's it, khatam kahani. So you have to have that kind of conviction, a strong strength in you. आप इन 3 चीजों पे काम तो करिए, आपके हालात कैसे नहीं बदलेंगे फ्रेंड. 100% there will be a change in you. 100%. I can challenge you on this. Yes, Hasan bhai. Jazakallah Salman Bhai for your insightful lecture today, and it was very, very helpful, I guess, for all the participants. Hasan bhai, From I believe that Sahil has requested you to unmute. इनके chat पे message आया है फिर से. शायद थैंक यू बोलना होगा. Okay. एहसान भाई, साहिल इमरान जी को अनम्यूट करना पड़ेगा. 1 सेकंड. जी साहिल भाई. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. जी सर, थैंक यू सर फॉर बूस्टिंग माय सोल लाइक दिस. नाउ आई विल थिंक, मतलब थोड़ा लग रहा है कि थोड़ा सा डिप्रेशन कम होने मतलब हो रहा है. इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू जस्ट. साहिल जी, मैं आपको एक सिंपल सी रिक्वेस्ट करूंगा मैं बस मैं आपसे, you know that we have got two choices. We can think either way. Actually, sir, I belong from a poor family. I have not so much resources. That's why I have achieved so much degrees. And mashallah, I have capability in my own field. Besides that, you know, I'm from a Kashmir valley where there is so much volatile environment and True. other things are here. So, sir, yes, sir. That's why कि यहाँ पे जॉब मिलना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है सर. ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है. बिल्कुल मैं अग्री करता हूँ. मैं आपने कहा डिफिकल्ट साहिल जी, मैं बिल्कुल मानता हूँ डिफिकल्ट है, लेकिन कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है साहिल जी. डिफिकल्ट है, मैं मानता हूँ. आई कैन एडमिट इट स्ट्रेट अवे. डिफिकल्ट है, बट अगेन इफ यू प्लान योरसेल्फ, सी if you go in depression you will not be able to plan, and when you don't plan how would you execute? तो डिप्रेशन से बाहर निकल के जब आप चीजों को प्लान करेंगे तब आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे. अगर हम प्लानिंग की कंडीशन में नहीं आएंगे, हम मेंटली इतना ऑक्यूपाइड रहेंगे डिप्रेशन के अंदर, तो हम कैसे प्लान करेंगे और कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? थैंक यू सर. Most Salman welcome. Bhai, actually, these students are basically from government degree college, which is boys section from Anantnag, which I believe is in Jammu and Kashmir. जी जी जी. Basically, there might be some placement issues over there pertaining to the conditions over there. So Right, right. what we as an organization can advise them is if they can migrate to the other locations for the job purposes. So there are other locations like New Delhi or Himachal Pradesh which are nearer to them. And बिल्कुल. basically, Sahil bhai, this kind of problem is being faced by not only in Anantnag or Jammu and Kashmir, but all across India. The same situation each and every person is facing in terms of the jobs and employment. So what we can do is, as advised by Salman sir, to be calm and to implement all the suggestions which he has given to you. Also, we can look out for the websites like job sites like Naukri.com, Monster, the other job sites which are giving you the opportunity to approach the employers directly. Apart from that, AMP also has an employment assistance cell wherein we help the candidates get jobs by referring their resumes to the corporates. Now you might see a statement which is written in the chat box, which is related to a group which has been formed by AMP. It's on Telegram. So so you will have to first of all download Telegram, and then you will have to click on the link which is AMP India Jobs. So all across India, what all job opportunities we come across, there's our EAC mentor over here who is also present today in the session. His name is Mr. Hassan Latifi,
So he basically shares all the job openings in that group. Apart from that, we also have a WhatsApp group. So we do understand there are some constraints which the Jammu and Kashmir people are facing due to the internet issues. So what all we can do, like one of the gentlemen had said that Google, as Salman sir had suggested to refer Google. So there are the other options also. If you are not having internet in your locality, you can also go and you can have some newspapers which publish the job openings, current job openings. Apart from that, I would also request our mentor, Mr. Hassan Latifi, if he would want to add something. Yes. Salam alaikum, everybody. I have heard you, Sahil. There are a few things which you have to bear in mind. First is get your resume checked. Most of the times, people make very lengthy or very unwanted resumes, for which, you know, the first step or the first opening that you have to understand for getting a job or getting an interview is your resume. So if your resume is weak, अगर आपका resume ही सही नहीं बना होगा, तो आपको इंटरव्यू पे कहाँ से आप पहुंचोगे? तो पहले आपका resume चेक कराओ. We try to help you in correcting your resume, so you can approach us. And another thing is that you can attend our sessions, like Salman Saab is having this session. We have interview sessions, or you can share you the link where there are other sessions which are already done on interview techniques, how to answer questions in interviews, how you go about presenting yourself in an interview. So these things. By depression, you're not going to solve your problem. The problem only solves when you get active. They say, if you don't act, if you don't don't do any action, there will be no reaction. So depression in such a situation is not going to help you. I sympathize with my brothers from Kashmir for the situation that you all are in, but we have to we have to work ourselves. We have to do something and try to progress. Try to, as Hassan suggested, we have to try to relocate or try to do something by which we can better ourselves in the prospect of getting a job. So all my friends, I request you all, please, if you all can join the Telegram group, fine. If you have a problem, approach me with your resume. I would gladly be able to try to guide you on that. And there are even out of India jobs which we post. So that also is another alternative. If you are not finding a suitable job in India, try some job abroad. Try some jobs in, if you are in technical person, try jobs in Canada. There are a lot of jobs available today in Canada also. So please look at options. Don't just feel depressed. Depression is not going to help. Depression is not your solution. अगर हम मतलब तलवार नहीं लिए तो कलम को अपना तलवार बनाओ और आगे बढ़ो. Okay, make yourself strong. You all are the tomorrow of the generation. Please be strong. Don't be weak. Okay, sir. Thank you. Thank you for your inspiration, sir. Welcome, brother. Ehsan, I have finished. Yes, thank you very much. Salman bhai, there is a request from Mr. Khurshid Ahmed Mir. He is actually the head of Department of Political Science from the college who has participated today. So is there any suggestion for us so that we can motivate our students so they won't take any extreme steps? So this would be a kind of a counseling which सर he is talking about. बिल्कुल बिल्कुल भाई मैं ये जो वर्ड जो मैंने पढ़ा लास्ट में एक्सट्रीम स्टेप, ये समझ में मुझको मतलब आया मुझे इसका. और इसके लिए मैं जो पर्सनल एडवाइस करूंगा ना, कि वो ये है कि जो बच्चे, मतलब हम जब जाते हैं अपनी क्लासेस में जाते हैं, तो हमको हमारे बच्चों के चेहरों से मालूम पड़ जाता है कि इनमें किसको काउंसलिंग की जरूरत है.
So first of all, I would really suggest that you keep an eye on those students whom you think that they are getting negative, they do not have any good hopes, and they are not hopeful, or maybe they are going into the negative direction. Counsel them. Counseling is the only way, we can boost their morale, we can give them a kind of motivation. Counseling is going to be a very very important tool, very important tool, to be very honest. मतलब मेरा पर्सनल मानना ये है भाई कि अगर जब जब ये जो काउंसलिंग जो वर्ड है ना, ये किसी भी इंसान को काउंसिल करके के बाद में जब आप उसको एक नया रास्ता दिखाते हैं, दिमाग की जितनी भी जो रुकावटें हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं, उनको रिमूव करने के बाद व्हेन ही सीज यस देयर इज अ पॉसिबल वे आई कैन वॉक ऑन, and that moment he realizes to go on to that particular way in place of going somewhere else. So counseling is going to be a very important activity, I would say. And number two, that I want, if in the college they can create some events wherein they can motivate students to showcase their creativity, because creativity kills depression. जो ये जो हमारी जो पर्सनल लाइफ में जो क्रिएटिविटी है, ये हमारे डिप्रेशन को, हमारे एंग्जाइटी को किल करने में बहुत काम आती है, बहुत ज्यादा काम। तो if in the college they can perform certain group activities, some tasks, something like that, and that too on occasionally, not so often, but at least like in a like a frequent, not so frequent interval, but certain things need to be there, certain things wherein they can showcase their talent, they can showcase their skills, and they can improve on that. I would advise two things: that let them showcase their creative side, and yes, counseling is foremost important, very important. Thank you very much. Khurshid Ahmed Bhai, I have put in my mobile number in the chat section. You can please contact us. We will definitely work out something and plan something for the students, especially on this area. And inshallah, we'll work out something for your college. Thank you very much, Mr. Hassan Latifi, Mr. Navid Sheikh, the panelists of AMP EAC team, for helping us drive this session smoothly. And Jazakallah Salman Zia sir for your training these students who would be now stepping into the corporate world, inshallah. Jazakallah everyone. I would now also like to thank the head of department, Mr. Khurshid Ahmed Mir, and the students of the Boys College of Anantnag. Thank you for joining AMP employability training session. For further details about similar programs, you can anytime visit our website www.ampindia.org. I would now end this session with a small qirat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم. Thank you everyone. Have a good day. Jazakallah. Allah Hafiz.